So question is convert 1 Newton into dyne. So first of all, write the dimension of force. Dimension of force. Tell me the dimension of force. Mass into acceleration. Tell me the dimension of force. Anyone? Mass is m1 and acceleration is L1 t minus 2. Every student should learn all the dimensions. Without dimension, your question will not be solved. So dimension of force is MA, that is M1 L1 T minus 2. For the conversion, which system you are going to convert, that is the SI system. Write it here as SI system. And in which system you are going to convert? CGS system. So write CGS system on right hand side. Write the first system as M1 is equal to L1 is equal to T1 is equal to a number N1. Okay. So mass की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? That is 1 kg in SI system and you will write it into grams. That is equal to 1000 grams. Length is 1 meter और CGS system में क्या होती है? This is 100 centimeter. Time is 1 second. ये change ही नहीं होता है. This is always 1 second. And the value is 1. You have to find 1 Newton. So the value is 1. अगर यहाँ पे 100 होगा तो you have to write 100. N1 is equal to 100. यहाँ पे 10 है तो N1 is equal to 10. And for CGS system, you will write it as a second system. This is M2, L2 and T2. Write these values in CGS system. Already it is 1 gram, it is 1 centimeter and it is 1 second. You have to calculate N2. N2 is how many dynes. You have to calculate the question mark. So you have to calculate N2. To write the formula, you have to learn this formula. This is N2. जो नंबर आपको कैलकुलेट करना है that is equal to N1 or square bracket. This is M2 by M1. Sorry. M1 by M2. जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है रेज टू पावर A. A क्या है? A is the dimension of mass in the formula of force. And this is L1 by L2. This is raised to power B. This is the dimension of length here. Look here. This is the dimension of length here in the formula of force. And then T1 by T2, the dimension of time in this formula C. So put all the values. You know all the values are written on the screen. N1 is 1. So write it 1. M1 is what? M1 is 1000 gram. So you can write it as 10 raised to power 3 grams. You can write it as like this. And what is M2? M2 is 1 gram. So put it as 1 gram. And can anybody tell me the value of A? You have to compare this A, B, C to these values, the dimensions of mass, length and time in the formula of force. So A is 1 from here. You can write it as like this, 1 and 2. By comparing the dimension in equation 1 and 2, आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको easy रहेगा, ठीक है? So A is what? A is 1. Or L1 is 100. You can write it as
10 raised to power 2 centimeter. And what is L2 is 1 centimeter. Put 1 centimeter here. And the value of B is 1. ये यहाँ पे जो L का dimension है, this is 1 and this is 1 second and 1 second in both the systems. And what is the dimension of C? This is -2. Okay, now write this value. ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल. यहाँ पे आपके पास आया 10 raised to power 3 into 10 raised to power 2 into 1 raised to power anything is 1 always. So this is equal to 10 raised to power 5. So your answer is 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dynes. तो जो N2 था that is 10 raised to power, the N2 is 10 raised to power 5. So this is your answer. Got it? Understood everyone? Yes, ma'am. Take a screenshot of this. This is the second application of dimensional analysis. एक बार फिर से repeat कर रही हूँ. First of all, you will write the formula of the quantity. You should identify what is this. This is the SI unit of force, and you have to convert in the CGS unit of force. So write it here as the SI system as the first system and CGS system as the second. जिसमें convert करना है, write it as second system. Write the values of M, L, T and N in both the systems and then put in this formula, this equation 2. This formula you have to learn. And then comparing the dimension in equation 1 and 2, the value of A, B, C, पहले आप लिख लोगे बेटा यहाँ पे A is equal to 1, B is equal to 1 and C is equal to -2. और फिर values put करेंगे तो you have the answer 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. अगर आपका screenshot हो गया, should I remove this? Take it as Yes, ma'am. take the screenshot because this is the first question in the practice questions जो मैंने आज दिए हैं आपको अपनी नोटबुक में नोट करने के लिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये. ठीक है, चलो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया. अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए थे और आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करने हैं. सारे बच्चों को नोटबुक चेक होगी और उसकी मार्क्स होते हैं. ओके, अब ये देखो आपको, अब ये क्वेश्चन है आपका, लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि द जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ. आप अब इसने एनर्जी लिखा है तो आप यहाँ पे वर्क भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्क की भी एसआई यूनिट जूल होती है और अर्ग दोनों की सीजीएस यूनिट होती है. ठीक है, तो आप इनमें से किसी का भी ले सकते हैं. सपोज आपने इसको एनर्जी लिखा या वर्क लिखा तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज M1 L2 T-2. इसका मतलब क्या है, ये लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है A is 1, B is 2, C is -2. Write the first system as SI system, second system as CGS system. This is 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर. ये सब में सेम आएगा, बस यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी वो लिखनी है आपको. ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. Then put these values in the equation in the formula. This one N2 is equal to N1 M1 by M2 और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1 जूल is equal to 10 raised to power 7 अर्ग. Clear to all? Any doubt? नहीं? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है. अब ये एक टाइप के दो क्वेश्चन हो गए. अब इसमें ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G. क्या होता है कैपिटल G? The value of capital G in CGS system is 6.67 into 10 raised to power -8 dyne centimeter square per gram square. Calculate the value in SI system. ये उल्टा दे दिया ना इस बार. ठीक है, और कैपिटल G क्या है? This is gravitational constant. Capital G is gravitational constant.
सो राइट दी, अगर आपको याद है डायरेक्टली राइट द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर नहीं याद है तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स का? कैपिटल F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से आप सॉल्व करके कैपिटल G की डायमेंशंस याद करेंगे या लिखेंगे। फिर इक्वेट दीज डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एज ABC। आपके पास ABC की वैल्यूज आ गई। देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप? देन यू हैव टू put all these values in the formula. So first, जो system आपको given है, write that system as the first system, n1 अब यहाँ पे ये value है, ठीक है? और जो भी फर्स्ट सिस्टम होगा आपको उसी की वैल्यूज लिखनी है। CGS सिस्टम फर्स्ट सिस्टम था, तो दिस इज ग्राम 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड, ठीक है? ऐसा सिस्टम आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n2। दिस इज 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। अब जो सिस्टम आपको गिवन है, ठीक है, जो फर्स्ट सिस्टम आपका होता है वो आप हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो आपकी वैल्यू आई यहाँ पे m1 बाई m2, L1 बाई L2, ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। So put all the values. N1 is this one, 6.67 into 10 raised to the power minus 8. M1 is 1 gram. M2 is 1000. Here put 1000. And L1 is 1 centimeter. L2 is 100 and 1 by 1. So ये जो values हैं, these write these values in the formula. अब आप इस फॉर्मूला को से सॉल्व करेंगे। पावर्स आपके पास गिवन है इसकी। अब देखो, ये इसने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। ये वैल्यू तो एज इट इज लिखी है आपने। अब इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये ब्रैकेट में होगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, और उसकी भी जो पावर है वो -1 है, ठीक है? सेकेंड वैल्यू है आपकी 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, और उसकी जो पावर है दैट इज 3, और 1 की कोई भी पावर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, ठीक है? अब ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और उसकी भी पावर -1, तो ये आएगा 10 रेज़ टू पावर प्लस 3, ठीक है? ये आ गया +3, और ये पावर टू पावर तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये आ गया इनटू 10 रेज़ टू पावर -6, ठीक है? अब ये 10 रेज़ टू पावर +3 और 10 रेज़ टू पावर -6, इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है? ये -3 है और यहाँ पे -8 था ऑलरेडी, तो उस -8 में ये -3 ऐड होके आपके पास वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू पावर -11। सो राइट द कंप्लीट वैल्यू कैपिटल G। ये आपका आंसर आया n2 की वैल्यू, ठीक है? तो n2 यहाँ पे लिख दोगे आप। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। तो SI सिस्टम में डाइन को क्या बोलते हैं? न्यूटन। सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? मीटर। और ग्राम को क्या बोलते हैं? किलोग्राम। मैं आपको दिखाऊं ऊपर यूनिट, और आप वहां से भी लिख सकते हैं यूनिट को। अगर आपको ना याद रहे तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये डाइन को हम लिखेंगे फोर्स, डाइन को हम लिखेंगे फोर्स, किलो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और ग्राम को हम लिखेंगे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें जो बच्चों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है वो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है। देखो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हिसाब से। अगर मैं आपको इसको 1 मार्क में देती हूँ तो थोड़ा सा आप देखें आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 1 मार्क में डायरेक्ट। 10 रेज़ टू पावर -8। अब यहाँ पे सिर्फ हम यूनिट को बदलेंगे। डाइन हमारा होता था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। और अगर मैं 1 डाइन निकालूं, क्योंकि यहाँ पे तो 1 डाइन है, अगर मैं 1 डाइन निकालूं तो मेरी 1 डाइन की वैल्यू कितनी होगी? 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन, ऐसे ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन, ठीक है? फिर अगला, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 रेज़ टू पावर -2, यही होता ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाय 100, और इसकी पावर कितनी है? 2। और अगर मैं ग्राम को किलोग्राम में बदलूं तो 10 रेज़ टू पावर क्या होता है ग्राम से किलोग्राम? -3, और इसकी पावर कितनी है? -2।
तो ये आपका आया किलोग्राम स्क्वायर, kg माइनस 2। और यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया आपका मीटर अंदर लिख लो या मीटर स्क्वायर बाहर लिख दो। तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻8। आपको मेरी बात समझ में आ रही है या मैं ऐसे ही लिखती जा रही हूँ कुछ भी? इंटू 10⁻⁻5, ये यहाँ से -5 इंटू ये -2 और ऊपर +2, तो 10⁻⁻4 और ये -3 और ऊपर -2, तो ये हो गया +6 इंटू 10⁻6। अब सारी पावर्स को ऐड करो, देखो क्या बनेगा, +6 -8 और -9 -17 और +6, तो -13 इंटू 10⁻13। और यूनिट आपने कर ही दी है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? आप डायरेक्ट 1 मार्क में ऐसे भी कर सकते हैं और 2 मार्क में आपको फॉर्मूला शो करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? अरे यस नो तो बोल सकते हो। सो गई क्या सारे बच्चे? यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन। मैम कैलकुलेशन गलत किया आपने। हाँ मैम बोलो, कैलकुलेशन गलत हुई थी मैम। क्या गड़बड़ किया? अच्छा मैम 13। -17 +6 11 -11 था मैम। चलो कोई बात नहीं, हम आप ठीक कर लेना उसको, ये -11 कर देना, ठीक है? हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक, -11 आ जाएगा आंसर। अब आप इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है वही चीज। यहाँ पे क्या है, अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base unit. तो अब आपको एक न्यू सिस्टम में जाना है, और ये जो न्यू सिस्टम है इसने ये नहीं बताया कि ये सीजीएस सिस्टम है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में मिनट्स तो होता नहीं है। चल ग्राम और सेंटीमीटर तो होता है बट मिनट्स नहीं होता। तो ये आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट सिस्टम को एसआई सिस्टम लिखेंगे और सेकंड सिस्टम को आप न्यू सिस्टम लिखेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे विजिबल है। तो अब हम ये देखेंगे पहले कि जो ये 60 जूल पर मिनट है, तो ये किसकी यूनिट है हमारे पास। हमें तो अभी यही नहीं पता चल रहा कि ये किसकी यूनिट है। तो हमने लिखा 60 इज द नंबर और जूल पर मिनट, अगर मैं इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देती हूँ तो हमारे पास जूल पर सेकंड, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैं एक एक लेवल ऊपर करती जा रही हूँ क्वेश्चंस का। वो इजीएस्ट क्वेश्चन थे, अब ये इजी हैं, फिर थोड़ा एक और मुश्किल आएगा। जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, इज इक्वल टू वॉट, एंड वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो अब यहाँ से जब आपको ये पता चल गया कि ये किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। राइट दी डायमेंशंस ऑफ पावर, दैट इज m1 l2 t-3। so a is 1, b is 2 and c is -3। अब आपके पास ABC आ गया, और आपने जो N2 वाला सिस्टम है ना, जो N2 जिसमें हम लिखते थे 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, तो उस सिस्टम में अब आपने यहाँ 1 की जगह ये वैल्यूज लिखनी है, ठीक है? और N1 हमें दिया ही हुआ है 60 जूल। तो हमारा फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, चेक चेक कि हम क्या लिखेंगे अब इसको। ये देखो, हमारा जो गिवन सिस्टम है उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमने ना इसको यहाँ 1 वॉट कर दिया। अरे बहुत ऊपर चला गया। हमने इसको 60 जो जूल पर मिनट था उसको जब हमने कन्वर्ट किया तो 1 वॉट हो गया, तो हमारा N1 जो हो गया वो 1 हो गया। तो अब हमारी वैल्यू यहाँ पे आप देखो, दिस इज N1 इज 1, M1 इज 1 किलोग्राम, क्योंकि ये तो हमारा एसआई सिस्टम है, हमने पार को कन्वर्ट करके जूल पर सेकेंड में, तो ये हमारा एसआई सिस्टम है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सारी एसआई सिस्टम की लिखेंगे। N2 सिस्टम हमारा न्यू सिस्टम है, क्योंकि वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। सो N2 हमें निकालना है। M2 इज गिवन 100 ग्राम,
L2 is given 100 centimeter, T2 is 60 seconds, that is 1 minute. हमने इसको सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ये हमारा सेकंड्स में है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे 1 की जगह आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। तो अब आप इसमें फॉर्मूला में पुट करिए, फॉर्मूला आपके सामने है, आपको मालूम है क्या है फॉर्मूला। इसमें आपने m1, m2, l1, l2 सारी वैल्यूज पुट कर दी, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास n2 की वैल्यू आई 2.16 इंटू 10⁻⁶। अब ये हमने कन्वर्ट तो इसी को करना था। अब यहाँ पे हम 1 जूल पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने करना तो इसी को था। तो दिस वैल्यू, और ये किसके इक्वल आई? इसके इक्वल। और यूनिट्स इसकी क्या रहेंगी? जो उसने दे रखी है, जो भी दे रखी है 160 मिनट, जो भी दे रखी है वो सब। तो आप लिखोगे न्यू यूनिट्स ऑफ पावर, ठीक है। अब ये देखो, इन क्वेश्चंस में ये आपको करने हैं घर से। अब दिन में बैठ के आप करोगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, कन्वर्ट 1, ये मैंने उल्टा कराया है, 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। तो आप इसको डाइन और न्यूटन में प्रैक्टिस कर लोगे, -5 आंसर आएगा। ये वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये उल्टा है। ये भी वहां पे मैंने कराया था डाइन से, ये वाली वैल्यू आपको दी हुई थी, ये वैल्यू गिवन थी, और ये आपने निकाली थी। अब ये उल्टा है, ये भी क्वेश्चन उल्टा है जो मैंने कराया है, ये भी सिस्टम उल्टे हो जाएंगे दोनों। तो सिस्टम उल्टा होने से क्या होता है? पावर चेंज हो जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज दिस इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड द वैल्यू इन एसआई सिस्टम। इसका मैंने हिंट भी दिया हुआ है आपको उसके लिए, ताकि आप, ये आंसर है, आंसर आप मैच कर लेंगे इससे। तो आप हिंट में से भी चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन 4 आप बेशक ना करें, 4 और 5 आप ना भी करें, कर भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट क्वेश्चन 4, 5 देख लेना, आपको जैसा सही लगे, आपको करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो नो इशू। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। नीचे अब इसके हिंट दिए हुए, क्वेश्चन 3rd का भी, 4th का भी, 6th का भी और 7 का भी हिंट भी है, ये आंसर मान सकते हो आप। आज की क्लास में यही है। नाउ यू पीपल कैन आस्क एनी क्वेश्चन।